Hi guys, my name is Shivani Goyal, if you didn't know that, and today I'm here in front of you all to discuss about this book that I've recently read. So Ikigai is one of the most recommended book, and it is based on the Japanese secret of having a happy, healthy and very long life. So Japan is basically the country where maximum number of centenarians are found. अब centenarians क्या होते हैं? Those people जो 100 से ज़्यादा उम्र के होते हैं. Basically a person who is 100 or more than 100 years of age. The authors of this book, what they did, they actually traveled Japan all over around and उन्होंने ऐसे लोगों से बात करी जो या तो 100 साल के थे या उससे ज़्यादा या उस एज को 100 साल तक पहुँचने वाले थे एंड दे डिस्कवर अबाउट दी लाइफ लेसन्स एंड लर्निंग कि आप कैसे एक हेल्दी हैप्पी और लॉन्ग लाइफ ले सकते हैं. बेसिकली अ सक्सेस मंत्र ऑफ हैविंग अ लॉन्ग लाइफ. So before I talk about the learnings that I learned from this book, I would like to talk about what actually Ikigai means. Ikigai meaning is the reason to live. What is your purpose of living on this planet? What is the reason behind you get out of your bed every morning? So lesson number 1, whatever you do, don't retire. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दी परमानेंट रिटायरमेंट की एक एज के बाद हम रिटायर हो जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दी वीकली रिटायरमेंट वी एक्चुअली वेट फॉर. जनरली हम 5 days अ वीक काम करते हैं और फिर सैटरडे संडे का वेट करते हैं. हैव यू एवर थॉट वाई कि हमें क्यों वीकेंड्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो द रीज़न, बेसिक रीज़न इज दिस, बिकॉज वी जनरली डू वॉट वी डोंट लव. हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमें एक्चुअली पसंद ही नहीं होता. बिकॉज if you are doing something that you actually like or love, I don't think you ever feel tired. In fact, काम करने के बाद भी आपको लगता है okay, I did something, we did it. Second is 80% secret. So it's about the quantity of food that you are intaking. Meaning, stop eating whenever you feel like okay, your tummy is 80% full. Now there is no formula कि हमें पता चल जाए कि हमारा पेट 80% भर चुका है. But the best way to identify it is कि जैसे ही आपको लगने लगे that you're feeling full, so stop eating, because उस समय तो it is actually giving us pleasure, हम मज़े में खा लेते हैं, but later on it is actually causing harmful effects on our body, digestive system में भी और आपके skin में भी. Lesson 3 is be mindful about reducing your stress. Yes, एक लंबी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र ये है कि प्लीज स्टॉप अवॉइडिंग टेकिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस. बेसिकली टेक योर प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस. उन्हें ऐसे इस तरीके से आप पॉजिटिवली लो कि ओके, दिस इज द चैलेंज दैट इज कमिंग अप इनटू माय लाइफ एंड आई हैव टू डू इट, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट एनीवे. लेकिन हर समय परेशान हो गए यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन. बस एक चीज़ होगी कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा. सो प्लीज़ अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस. Lesson 4 is a lot of sitting is going to age you. Basically avoid sitting for n number of hours. क्योंकि अभी हमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया है तो ये मैंने पर्सनली भी आइडेंटिफाई किया कि हम बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं, मतलब 3-3, 4-4 घंटे तक कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं. ये बुक हमें ये सिखाती है कि प्लीज़ इधर टेक 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक या फिर 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक. इट इज़ जस्ट प्लीज़ stand up out of 50 minutes of sitting into just one posture. Go and walk, because it is ultimately affecting your muscular respiratory fitness and also increasing the obesity. This is one of the main reason. बहुत देर तक बैठे रहना is one of the main reason कि अभी इतने सारे लोग बहुत मोटे हो चुके हैं. So please guys avoid sitting for like long hours. Lesson number 5. Find out the purpose of your life. So it is one of the biggest thing you actually need to do. Find out what makes you happy. Find out वो एक ऐसी चीज़ क्या है जिसे करके तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, and that one thing that is actually charging you up, and try to make it your passion. Because I don't think there is like nothing you can actually make money from it. So find out your passion and then find out a way how you can earn from it. Lesson number 6 is understand the power of flow. Meaning you should know कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, and what is the concentration level that you are putting into your work. कई बार हम काम कर रहे होते हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर हमारा माइंड उस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. सो बेसिकली स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड. आप चाहे 1 घंटे नहीं करो, 20 मिनट करो, बट ट्राई टू पुट योर माइंड इनटू इट. You should be working like okay, this is the only thing that I am doing and it is one of the most important thing that I have to
understand that power of flow and increasing your concentration level into one thing. Lesson number 7 is bifurcation. Bifurcation is one of the most important key to get your things done. I personally use it in my lifestyle. Basically क्या होता है, when we have big goals in our life, हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि यार how am I going to achieve it? It is so big, it is so far away from my approach. लेकिन bifurcate your dreams, bifurcate your goals basically. अगर आपने सोचा है आपने A काम करना है, so make those sections A.1, A.2, A.3 और उस काम के डिवीजन को आप काम करो and then check it out. कैसे ठीक है, अभी इस A को अचीव करने के लिए मुझे ये 10 स्टेप्स लेने थे, तो मेक दोस 10 स्टेप्स की एक सीरीज एंड देन चेक आउट आपने जो चीज़ें कर ली हैं एंड यू विल सी एन अमेजिंग डिफरेंस टू ट्राई बाइफिकेशन इन योर वर्क. सो लेसन नंबर 8 इज नेवर एवर स्टॉप लर्निंग. एक एज पे आने के बाद, आई मीन पहले के लोग तो फिर भी एक एज पे आने के बाद करते थे, बट वी एज ए यूथ आई हैव नोटिस्ड दिस इनटू लाइक सो मेनी पीपल. अभी हम 2-3 साल के बाद सोचते हैं चलिए कि मुझे ना बहुत आ गया है एंड आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग. सो गाइस, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग. इस बुक का बहुत बड़ा एक मंत्रा ये है कि दीज पीपल नेवर स्टॉप लर्निंग. वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं दैट इज़ वेरी क्रिएटिव एंड दैट ब्रिंग्स दैट अनदर स्पार्क इनटू देयर लाइफ. सो नेवर स्टॉप लर्निंग. लेसन नंबर 9, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस. काम की भागदौड़ में इतना भी नहीं भाग जाओ कि अपने ही लोगों को भूल जाओ. बेसिकली स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, टॉक टू देम, लाफ विद देम, एक ट्रिप प्लान कर लो, डू लाइक वट एवर यू वांटेड टू डू वंस अ वीक. उनके साथ टाइम स्पेंड करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ में खुश रहें. खुश रहना इज द सक्सेस मंत्र ऑफ अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ. लेसन नंबर 10, कल्टिवेट गुड हैबिट्स. अगर आपने ये कहीं और भी बेसिकली सुना ही होगा एंड इस बुक में भी यही बताया गया है, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 काइंड्स ऑफ हैबिट्स. पहली हैबिट ऐसी जो आपको आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे. दूसरी हैबिट ऐसी है जो आपके पैशन को अलाइव रखे. इफ़ यू लाइक सिंगिंग, इफ़ यू लाइक डांसिंग, आर्ट, भागना, दौड़ना, स्पोर्ट्स, एनीथिंग यू लाइक, आपकी एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए जो आपके पैशन को जिंदा रखे. तीसरी हैबिट ऐसी है जिससे यू कैन अर्न मनी. एक्चुअली यू कैन start earning money from those things. So eat healthy, exercise daily, be optimistic, be very very positive and don't worry. And also I personally think this that giving back to the world is one of the best things we as humans can do. अगर आपको कोई चीज़ आती है then give it back to the world and you will actually feel too happy. So cultivate good habits. Now lesson number 11, get rid of the things that makes you weak. So guys, ऐसी हर एक आदत को छोड़ दो जो आपको वीक करती है. Stop snacking between your food time. आप pay all your debts. मतलब उधार मत रखो किसी का भी, because it is one of the thing जो आपके माइंड को हैवी करता है. Eat sweets once a week. एक हफ्ते में एक बारी मिठाई खाओ. And read. Start reading a lot so that you actually avoid people, toxic people. And another point is avoid toxic people. The people who actually demotivates you, please avoid them until and unless you are not wrong. Avoid those people who are actually creating toxicity in your life and start spending very minimal time on social media. मतलब यूज़ करो डेफिनेटली सी बात है, बट पूरे टाइम उसमें मत लगे रहो. मतलब 24 घंटे में से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 15 घंटे उसी पे निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर हम इस चीज़ के लिए रोते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमें कुछ नया सीखना है. तो सो बेसिकली स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. Okay. Now come to lesson number 12. It is all about this book. Follow your ikigai. I mean, अगर आपको नहीं पता what is your passion, what is that one thing that makes you happy, ऐसा क्या है. So guys, let me tell you one thing. You are very creative. You are very talented. You have the whole potential of this world. अगर आप चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो. But ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता. So stop doing that. फाइंड आउट योर इकिगाई अगर आपको नहीं पता है एंड देन मेक थिंग्स कम ट्रू. मेहनत करो उसके लिए एंड फॉलो योर इकिगाई. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड यू हैव एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस बुक. बेसिकली आपने बुक नहीं पढ़ी भी है अगर, तब भी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू पुट आउट ऑल द क्रक्स ऑफ दिस बुक इन दिस वीडियो एंड आई होप आपने इससे सीखा होगा. एंड इफ येस, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनसे भी आप प्यार करते हो या
या जो भी आपके दोस्त हैं, एंड डू शेयर इट विद देम एंड लेट मी नो व्हाट यू लाइक अबाउट दिस वीडियो इन कमेंट सेक्शन, और व्हाट इज़ दैट वन लर्निंग जो आप या तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में करते हो या आपने इस वीडियो के थ्रू सीखी. And stay safe, stay healthy, and please find out your ikigai and follow your passion. Thank you so much and take care.